السلام علیکم دوستوں۔ ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی ہستی کی داستان کی طرف جنہوں نے محبت، امن اور انسانیت کی خدمت کا پیغام دیا، جنہوں نے اپنی درویشی اور محبت سے برصغیر کے لاکھوں دلوں کو اللہ کی طرف مائل کیا۔ چلیے ان کے روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ 537 ہجری سستان کے قصبہ سنجار میں سید غیاث الدین کے گھر ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نسب حضرت علی سے ملتا تھا۔ یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہ تھا، کھیل کود کے بجائے اکثر تنہائی میں ذکر الہی کرتا۔ قرآن کی تلاوت اور عبادت اس کی روح کی غذا تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور اس کے بعد حفظ قرآن پاک کی تکمیل فرمائی۔ ابھی تعلیم جاری ہی تھی کہ عمر صرف 15 برس کی تھی اور والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایسے نازک لمحات میں آپ کی والدہ سیدہ بی بی ماں نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بیٹے کو سمجھایا، فرزند، زندگی کے سفر میں ہر انسان کو تنہائیوں کی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ ماں کی تسلی اور نصیحت نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا دل سنبھال دیا۔ آپ نے مزید شوق اور لگن کے ساتھ علم حاصل کرنا شروع کیا۔ والد کی طرف سے ایک باغ وراثت میں ملا۔ روایت ہے کہ ایک دن ایک درویش وہاں آیا۔ اس کی دعا اور گفتگو نے بچے کے دل کو بدل دیا۔ خواجہ صاحب نے وہ باغ فروخت کر دیا اور حاصل شدہ مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے بخارا اور سمرقند کا رخ کیا۔ وہاں قرآن، حدیث، فقہ اور منطق میں مہارت حاصل کی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے، علم وہ ہے جو دل کو زندہ کرے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔ یوں ایک یتیم نوجوان نے وراثت چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی، اور یہی سفر آگے چل کر پوری بر صغیر کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ کتابوں کی روشنی اور اساتذہ کی صحبت نے آپ کو علمی پختگی عطا کی۔ روایت ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں کئی علوم میں مہارت حاصل کی، مگر دل میں ایک بے قراری باقی رہی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے، علم اگر دل کو اللہ سے نہ جوڑے تو وہ بوجھ ہے۔ اسی بے قراری نے آپ کو معرفت الہی کی تلاش میں لگا دیا۔ آپ نے روحانی تشنگی بجھانے کے لیے بغداد شریف کا سفر کیا۔ اس وقت بغداد مشائخ اور اولیاء کا مرکز تھا۔ یہاں آپ نے کئی بزرگوں کی صحبت اختیار کی اور ذکر و مجاہدہ میں مشغول رہے، لیکن دل اب بھی کسی مرشد کامل کی تلاش میں تھا۔ آپ دعا کرتے کہ اللہ ایسا استاد عطا فرمائے جو دل کے پردے ہٹا دے۔ یہ جستجو بالآخر اس شخصیت کے در پر لے آئی جس نے خواجہ معین الدین حسن چشتی کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ تھے حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اس زمانے کے عظیم صوفی اور شیخ وقت تھے۔ خواجہ صاحب نے دل کی ساری کیفیت ان کے سامنے رکھی اور بیعت کی درخواست کی۔ حضرت عثمان ہارونی نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، اب یہ دل صرف اللہ کے لیے دھڑکے گا۔ اسی لمحے سے خواجہ حسن معین الدین چشتی سلسلہ چشتیہ کے ایک روشن ستارے بن گئے۔ مرشد کی صحبت میں آپ نے 40 دن کا چلہ کشی کی، سخت مجاہدے کیے، کبھی جنگلوں میں بھوکے پیاسے رہے، کبھی رات بھر عبادت میں کھڑے رہے۔ مرشد فرماتے، بیٹا، راہ ولایت آسان نہیں، اس راہ میں نفس کو توڑنا پڑتا ہے۔ حضرت عثمان ہارونی نے ایک دن اپنی نگاہ فیض ڈالی اور خواجہ صاحب کے دل کے پردے ہٹا دیے۔ آپ کو ایسی معرفت نصیب ہوئی کہ کائنات کا ہر ذرے میں اللہ کی نشانی دکھائی دینے لگی۔ آپ نے مرشد کے ساتھ بغداد، حجاز اور کئی شہروں کا سفر کیا۔ سفر بغداد کے دوران خواجہ معین الدین چشتی کی ملاقات شیخ نجم الدین کبریٰ سے ہوئی۔ اولیاء کرام میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔
ख्वाजा साहिब चंद माह उनके यहाँ क़याम पजीर रहे। इसके बाद आप शेख अब्दुल कादिर जेलानी की खिदमत में हाजिर हुए और कुछ अरसा वहाँ क़याम फरमाया। फिर आप तबरेज़ तशरीफ़ ले गए, जहाँ ख्वाजा अबू सईद तबरेज़ी से फैज़ हासिल किया। चंद दिन बाद आप अस्फ़हान पहुँचे और शेख महमूद अस्फ़हानी की सोबत से फैज़ याब हुए। अस्फ़हान से रवानगी के वक्त नौजवान कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके साथ हुए, जो बाद में ताजदार हिंद कहलाए। हिंदुस्तान के सफ़र से पहले आपने हिजाज़ मुक़द्दस की ज़ियारत की, मक्का मुकर्रमा में हज अदा किया। इसी दौरान ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का हाथ पकड़कर अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और बैतुल्लाह शरीफ के परनाले के नीचे ख्वाजा साहब के लिए मुनाजात की। गैब से निदा आई, हमने मुइनुद्दीन को कबूल कर लिया और फिर मदीना मुनव्वरा पहुँचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में हाजिर होकर शरफ़ ज़ियारत हासिल की। अफ़रेज़ा हज अदा करने के बाद एक अरसे तक मदीना मुनव्वरा में इबादत में मशगूल रहे। चुनाचे एक रोज़ दरबार सुरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बशारत हुई, ए मुइन, तू मेरे दीन का मुइन है, तू अजमीर जा, तेरे वजूद से जुल्मत व कुफ्र दूर होगी। ये बशारत सुनकर आप बहुत मसरूर हुए, हैरान भी थे। अजमीर कौन सा मकाम है और किस मुल्क में है? जब दुरूद व वज़ाइफ से फारिग हुए तो आलम ख्वाब सुरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। आपने शहर अजमीर दिखाया। हिंदुस्तान पहुंचकर सबसे पहले आप लाहौर आए। यहाँ आपने हज़रत अली हिजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श के मज़ार पर हाज़री दी और कई दिन क़याम फरमाया। आप कहा करते थे, दाता साहिब मेरे लिए चरागे राह हैं। लाहौर से आप दिल्ली तशरीफ़ ले गए। दिल्ली उस वक्त एक बड़ी इल्मी और तिजारती बस्ती थी। यहाँ आपने खुतबे और वाज फरमाए, लोग जोक दर जोक आपके गिर्द जमा होने लगे। दिल्ली से आपने अजमीर का रुख किया। वो सरजमीन थी जहाँ हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। रास्ते की सूबतों के बावजूद आपका अज़्म पुख्ता रहा। अजमीर पहुंचकर आपने एक पहाड़ी के दामन में क़याम फरमाया। ये वो जगह थी जहाँ से आपकी तबलीग और रूहानी इंतलाब की रोशनी फैलेगी। जब हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमीर में तबलीग शुरू की तो आस पास के लोग इस्लाम कबूल करने लगे और ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। आपके पास राजपूतों की टोलियाँ आईं जो आपका इम्तिहान लेने और आपको यहाँ से निकालने की कोशिशें कर रही थीं। जब राजा पृथ्वीराज चौहान को उसकी इत्तला मिली तो वो सख्त बरहम हुआ और हर मुमकिन कोशिश की कि आपको अजमीर से निकाल दे, मगर आप अपनी जगह पर साबित कदम रहे। जब हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती के हाथों इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा तो राजा आपका शदीद दुश्मन बन गया और आपको कत्ल की धमकियां देने लगा। हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती भी गुस्से में आ गए और फरमाया, हमने तुझे गिरफ्तार करके मुसलमान फ़ौज के हवाले कर दिया है। राजा ये सुनकर पहले चूका, फिर कहकहा लगाकर बोला, कौन सी फ़ौज आएगी मुझे गिरफ्तार करने? उसके तंजिया सवाल पर हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती ने मुख्तसर कहा, अब जो होगा वो तुम खुद देख लोगे। न बादशाही लिबास, न जाहे जलाल, सिर्फ एक चेहरा जो नूर से चमकता दमकता था। ये थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इजने दुनिया बाद में गरीब नवाज से जानने लगी। ख्वाजा साहब के खानका गरीबों का सहारा बन गई। हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब सब उनकी महफिलों के जीनत बन गए। अजमीर में आपकी कई करामात मशहूर हुए। जो बीमार आता शिफा पाता, जब भूखा आता पेट भर के जाता। रिवायत है कि एक मर्तबा पूरे शहर में कहत पड़ गया। लोग बहुत परेशान हुए, खेतों में सोखे पड़ने लगे। फिर ख्वाजा साहब की दुआ से अल्लाह के हुक्म से बारिश हुई, खेतियां लहलहा उठी। आपकी सखावत और फैज़ देखकर लोग आपको गरीब नवाज कहने लगे और ये लक़ब आज भी आपकी पहचान है। यूं अखलाक और किरदार देखकर लाखों लोग आपकी तबलीग से मुसलमान हुए। इधर सुल्तान मोहम्मद गौरी एक रात नींद में थे कि ख्वाब में एक नूरानी चेहरा नजर आया। एक बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, चमकता चेहरा, जो नर्म मगर पुरअज़्म लहजे में फरमा रहे थे, मोहम्मद,
मैंने हिंदुस्तान तुम्हें अता किया है, उठो और इस सरजमीन पर जाकर हक का परचम लहराओ। सुल्तान घबरा कर बेदार हो गए, दिल में हैरत, जहन में सवालात। क्या वाकई ये इल्हामी इशारा था? क्या वो फिर से हिंदुस्तान का कस्द कर सकते हैं? उन्होंने ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया, मगर अगली रात वही बुजुर्ग फिर आए। अब की बार उनके लहजे में सख्ती थी। मोहम्मद, हुक्म दिया गया है, रवाना हो जाओ, तुम्हें मदद गैबी हासिल है। सुल्तान ने अगले दिन उलमा और अहले फरासत को जमा किया। सब ने मशवरा दिया कि यह ख्वाब एक गैबी इशारा है, फतह तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। एक दरवेश ने फरमाया, ये वही बुजुर्ग हैं जिनकी दुआ से बादशाही नसीब होती है, मगर उनकी हकीकत फतह के बाद ही जाहिर होगी। अब सुल्तान मोहम्मद गौरी ने इरादा कर लिया। 1 लाख सिपाहियों की फौज तैयार की और पिछली शिकस्त का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया। इधर से राजा पृथ्वीराज चौहान भी 3 लाख फौज और हजारों जंगी हाथी लेकर मैदान में आया। दोनों लश्कर एक बार फिर तराइन के मैदान में आमने सामने हुए। राजा ने पैगाम भेजा, ए गौरी, अपने सिपाहियों पर रहम करो, वापस लौट जाओ, हम तुम्हें कुछ ना कहेंगे। मगर सुल्तान ने निहायत सुकून से जवाब दिया, मैं अपने रब के हुक्म पर आया हूं, वापसी अब मुमकिन नहीं। अगली सुबह सूरज तुलू होने से पहले ही जंग छिड़ गई। धुएं, नेज़ों और तकबीर की आवाज़ों ने फ़ज़ा हिला दी। दोपहर तक अंजाम जाहिर हो चुका था। राजा की फ़ौज पसपा हो गई, इस्लाम की फतह हुई। राजा पार्थवीराज को दरियाए सरस्वती के करीब से गिरफ्तार किया गया और यूं हिंदुस्तान की तारीख का एक नया बाब खुल गया, वो बाब जिसे बाद में नूरे अजमीर ने मुकम्मल किया। इस जंग के बहुत बड़े नताइज निकले। अब मुसलमानों के सामने कोई ताकत बाकी न रही। अगरचे कुनूज और इनलवाड़ा के राजाओं ने शुरू में इताअत से इनकार किया, लेकिन जल्द ही शिकस्त खाकर सरे तस्लीम खम कर दिया। यूं हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक मजबूत हुकूमत कायम हुई। ये वही हुकूमत थी जो बाद में एक अजीम सल्तनत की शक्ल इख्तियार कर गई और जो तकरीबन 1857 तक कायम रही। यही वो दौर था जिसने बर्रे सगीर की तारीख, उसकी तहजीब और उसकी रूहानी फ़ज़ा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वक्त गुजारता गया। तबलीग इबादत और खिदमत खल्क में उम्र गुजारने के बाद वो घड़ी भी आ गई जब गरीब नवाज ने अपने रब के हुजूर लब्बैक कहा। शीशों में रजब 633 हिजरी को आप विसाल फरमा गए। आपकी विसाल की खबर सुनते ही अजमीर के कोने कोने से लोग दौड़ते हुए आए। आपके विसाल के बाद इसी जगह पर आपका मज़ार बनाया गया। यही वो मज़ार जिसकी वजह से आज अजमीर दुनिया भर में मशहूर है। आपके बाद आपके खुलफा और शागिर्दों ने पूरे हिंदुस्तान में सिलसिला चिश्तिया की शमएं रोशन की, जिनमें मशहूर नाम ये हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फरीद, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। सब इसी सिलसिले के दरख्शां चराग थे। आज भी हर मज़हब और हर तबके के लोग अजमीर शरीफ आते हैं, कोई गम लेकर, कोई दुआ लेकर, और सब कहते हैं गरीब नवाज आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पैगाम था, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। और यही पैगाम आज भी बर्रे सगीर के दिलों को जिंदा रखे हुए है।